Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Bhavani, I promised you I'll be right by your side. So I'm going to be asking you some questions. Before I ask you a question, I just want to say something. It takes a beautiful soul to write the story you've written. We're not going to talk about Kafir right now, but we are talking about why Kafir. So we've all shared our stories of humanity and what it is that helped us understand it a little better. Would you like to tell us what to you is humanity? Good evening, everybody. Just when I decided to, when Sid told me that we are kind of going to start work on Kafir, I had to go to Srinagar for some work. Coincidentally, it just happened. I went there and I just was talking to one of the little boys who was very happy that he didn't have school that day. And I asked him, why don't you have school? And just a local boy, about 7 or 8 years old. And he said, because of the curfew. And his older brother comes running to him and to me and says, but madam, pata hai, aaj meri talashi hui. And he said it with such pride. And I just was so shaken by the reality of the world that they inhabit, which is so different from what we do. And I felt that it is very important for us to tell those stories to the rest of the country, to the rest of the world, about people living in, these conflict-ridden areas. And to me, the humanity was, them sharing this thing with me as if they don't blame us, they don't blame anything. They just, for them, it's just a way of life, and they find joy within that. So that was one experience, and it almost seemed like a bookend for Kafir, or a beginning for it. Thank you, Bhavani. I have to say here that it takes a certain kind of spirit to feel what it is that you feel as a human being. And I said this earlier, you weren't here, I'm going to say it again. I consider it a privilege to be a part of your journey. Thank you so much. And what you have done with it is We'll talk about that remarkable. later. I'm going to switch now to a remarkable young lady who's with us, who's going to share her little experience or whatever it is that you want to share on humanity. Good evening, everyone. बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब इस मंच पे हैं बात करने के लिए इंसानियत के बारे में, क्योंकि जिस टाइम्स में हम रह रहे हैं, जो आजकल हो रहा है, यहाँ आजकल नफ़रत की बात करो तो कोई बात नहीं, जहाँ प्रेम की बात करो, सबके साथ मिलजुल के रहने की बात करो, वहाँ आप कभी कभी किसी ना किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं. आजकल लोग कहते हैं कि थोड़ा समझ के ट्वीट करना, सोचना ये लिखने से पहले, हिंदू मुस्लिम की बात करने से पहले सोचना, जात पात की बात करने से पहले सोचना. लेकिन ये जहाँ प्रेम और सद्भाव की बात होती है, वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि पहले सोचना, सोच समझ के करना. एंड आई थिंक इस बात का मुझे सबसे ज़्यादा गम है कि हम प्रेम और सद्भाव के बारे में बात करने से पहले लोग हमें वार्निंग देते हैं कि सोच समझ के लिखना प्रिया, सोच समझ के कहना. और मैं नहीं सोचना समझना चाहती जहाँ बात प्रेम की हो, जहाँ बात इंसानियत की हो. सो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया. उसके बाद मैं 10 साल बाहर रही हूँ, फिर वापस इंडिया आ गई. लेकिन एक बात नहीं बदली, ना यहाँ पे ना वहाँ पे, इनफैक्ट पूरी दुनिया में, कि हम अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं कि डोंट ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर. मतलब कोई अगर किसी को नहीं जानते हो तो उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना. और कहीं ना कहीं ये बात हम सबको सिखाई जाती है बचपन में, और हमारे पेरेंट्स के रीजंस होते हैं कि क्यों स्ट्रेंजर्स को ट्रस्ट ना करें. इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू अरण्या एंड हर मॉम आज यहाँ पे शुरुआत से पहले ही, और मैं उन्हें बता रही थी कि मेरा बॉम्बे में पिछले 3 साल में, मैं बॉम्बे में पहले कभी नहीं रही थी. आई वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन देहरादून. ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले बॉम्बे जितना मुझे पता है वो सिर्फ इंसानियत की वजह से पता है.
ना दोस्तों की वजह से पता है, ना परिवार की वजह से पता है, सिर्फ स्ट्रेंजर्स की वजह से पता है। एंड आई वॉज टेलिंग देम अबाउट एन एक्सपीरियंस यहाँ पे कि पहली बार क्वींस नेकलेस बॉम्बे का मुझे एक स्ट्रेंजर ने दिखाया, जिस पे मैंने बहुत शक किया था उसकी गाड़ी में बैठने से पहले, लेकिन मेरा फ़ोन डेड हो गया था, आई वॉजंट कैरिंग कैश, लेकिन फिर मैं बैठ गई एंड आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड विद दैट एक्सपीरियंस। ना मेरे पास उस इंसान का नंबर है, ना उस इंसान को मुझसे कुछ चाहिए था, कुछ भी नहीं था। ही जस्ट वॉन्टेड टू शो मी बॉम्बे, क्योंकि मेरा तीसरा दिन था बॉम्बे में और मैं ट्राइडेंट में एक इवेंट अटेंड करने गई थी। उसके बाद भी जितना भी बॉम्बे मुझे पता चला, स्ट्रेंजर्स के थ्रू पता चला। लेकिन वो स्ट्रेंजर डेंजर, इंसान की इंसानियत को पहले ना देखना, ये जो सिखाया गया था, ये हमेशा से था। नहीं नहीं, डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, वो ये हो सकता है, वो हो सकता है, जो शायद अब धीरे धीरे चला गया। और इस बारे में ही मैं बात करना चाहती हूँ। तो इस बारे में 1 साल पहले मैंने एक कहानी लिखी थी, जिस कहानी का नाम था मेरा ऊपर वाला, और ये कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी लाइनें हैं जिनका मज़ा पढ़ने में है, बोलने में नहीं। लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूँ उस स्टोरी के बारे में। तो देहरादून में जब मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ, तो हमारा घर एक ऐसी जगह पे है जिसमें मैं लोगों को बताती हूँ तो लोगों को लगता है कहानियाँ सुनाती है, इसलिए थोड़ा बड़ा चढ़ा के बता रही है, एक्टिंग भी करती है तो शायद डेफिनेटली बड़ा चढ़ा के बता रही है, बट इट्स रियल। मेरा घर जहाँ पे है, मेरे घर के सामने एक सरदार फैमिली रहती है। मेरे घर के राइट साइड पे एक सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट चर्च है, जहाँ के पादरी हर थोड़े साल में चेंज होते हैं, लेकिन जो भी आते हैं उनकी फैमिली परिवार सहित आते हैं। और दूसरी जो साइड है, वहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली है। और मैं जब भी किसी को ये बात आती है, वो कहते हैं लाइक ओके दैट्स वेरी आइडियलिस्टिक, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा था, और हम ऐसे ही पैदा बड़े हुए। ईद पे उनके घर से सेवई आती थी, बकरीद पे बकरा भी आता था। मैं बहुत रोती थी, ये तो वही है जिसको मैं प्यार कर रही थी, एंड फिर मैं रात को उसको खाती भी थी बहुत मज़े से। जो सिख फैमिली थी, उनके साथ हम गुरुद्वारे जाते थे। तो जो क्रिश्चियन फैमिली थी, क्रिसमस पे उनसे मिलना जुलना होता था। तो एक बहुत कम्यूनल, और कम्यूनल शब्द के बारे में भी क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। 2019 में ये शब्द यूज़ करना इतना, और कहते हैं ओ नो नो नो, अगर आप शब्दकोश में जाएंगे, डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब होता है एक हार्मनी की सेंस, अ सेंस ऑफ हार्मनी अमंगस्ट डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो जी हाँ, बहुत कम्यूनल सा माहौल था, क्योंकि कम्यूनल एक बहुत ही पॉजिटिव शब्द है जिसको हम सब ने नेगेटिव पेंट कर दिया है, लेकिन वो बाद की बात है। तो मतलब पैदा और बड़ी हुई, मोहल्ले वालों के साथ जाके इधर उधर पूरा सबको जानती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, ये स्ट्रेंजर डेंजर बढ़ता रहा, एंटी सोशल होती रही, लोगों से बात करना कम कर दिया, इंट्रोवर्ट हो गई, नहीं जानना चाहती थी कि आसपास में कौन रहता है। और यही कहानी मेरे साथ बॉम्बे में भी हुई। तो सुनिए मेरा ऊपर वाला।